Yes, very good evening to everyone. मेरे साथ रौनक है and she is following consistently with very good conviction. PC no SG, PC no SG, stop and use to buy sell. I request Ronak to explain her view on Nifty. Yes, Ronak. मैंने आपको अनम्यूट किया है. आपको मुझे अनम्यूट करना होगा. Are you there, Ronak? क्या हुआ रौनक? Slowly you लोग consistently one particular trade setup follow कर रहे हो और जो हमने यहाँ पे शेयर किया हुआ हो, एक्सप्लेन किया हुआ हो. I will request each and every 60 participant कि आप भी from your side start sharing your view on current scenario referring to any trading strategy which has been shared here and which we are following consistently. मैंने आपको अनम्यूट किया है, आप प्रेजेंट कर सकते हो अभी. Hello. Yes, Ronald. Yeah, am I clearly audible, sir? Yes, yes, very much. Okay. First of all, thank you very much, sir, for giving me this opportunity. And Be little louder. all the sections. Okay. Thank you to all the sections to give me this time and hear me out. And thank you very much, sir, to give me this opportunity. And I would just like to pinpoint certain things about Nifty at this point, where we need to have a little cautious view in terms of further buying. And a slight possibility of correction can be expected at this point is what my view is. And I was discussing this view with sir in the evening. So post our discussion, it was a request from sir to present my view in the webinar. So I would just like to try and explain my view. It's only a view here, and this view comes into action only when we see any kind of resistance in weekly time frame and also daily time frame. We get a snake. So let's just go ahead with the view and what is my reading. I would like to just share that over here. One request, Ronak. Yeah. If you can share in Hindi, so no, everyone can understand it. Hindi, sir. Possibly. Okay, I will try, sir. Yes. Okay, we'll take up monthly time frame first, sir. Nifty monthly.
Yes, Rama. Okay. Yes, month में हम देखेंगे in January month. January में Nifty. Yeah, one second. Let me open the plan. Yeah. Yes. Okay. In January month, Nifty हायर गैप से ओपन हुआ था, ICRC ओपन हुआ था, और निफ्टी का ओपनिंग लो है 13,953.75 and the new BDP value over here is 13,774.30. Okay, and in opening period ICRC में ही रहा निफ्टी, so it was ICRC with higher gap opening, and 1 minute. by trading, yeah. Only one. I'll explain this in detail. Okay. Opening period in January was up to 8, and the lowest low is 13,953, which is greater than new BDP. इसको हम कहते हैं हायर गैप, यानी ICRC हायर गैप से ओपन हुआ था. Yes, Ronak. Huh. Then it managed to trade RC 38.2 TVHS 14,493.45 on higher side, और fresh support देने के बाद निफ्टी ने हाई बनाया in the following days 14,753.55. okay, and उसके बाद it was SNR to sell from 14.6 TVLS, RC 14.6 TVLS 14,008.10. तो यहाँ पे निफ्टी रेजिस्टेंस से बंद हुआ है, फर्स्ट पॉइंट टू नोट. सेकेंड थिंग, ये हायर गैप से ओपन होने के बाद, SNR टू सेल होने के बाद, निफ्टी मैनेज टू फिल द हायर गैप बाय मीटिंग न्यू BDP. 13,774.30 वाज न्यू BDP, और निफ्टी ने लो बनाया है 13,713.25 का 28 जनवरी को. सो ये पीरियड को हम बोलेंगे पोस्ट क्लोजिंग नो हायर गैप. आई थिंक सर हैज ऑलरेडी टेकन वन वेबिनार बेस्ड ऑन दिस कॉन्सेप्ट. So as per this concept, this period has closed with PC no HG or resistance से बंद हुआ है. Now we will come to this month first, sir, the current month. Need to explain TPHS, TPLS. Okay, no problem, sir. So यहाँ पे निफ्टी का highest high is 14,753.55. उसका नेक्स्ट लेवल बनता है 15,043.80 RC 100% ऑफ मंथली टाइम फ्रेम, और उसका TVHS है 15,164.40. यहाँ पे ये एब्सोल्यूट लेवल का भी बहुत इंपॉर्टेंस है, एंड एज पर ओल्ड लर्निंग एंड प्रीवियस मेथड यहाँ पे हम लोग एब्सोल्यूट लेवल को TPHS मानते थे. So 15,043.80 becomes our trigger price on higher side, or 13,325.45 is the next level of the low, because low है 13,713. So low का next level बनता है 13,325.45, which is 61.8 TVLS, 61.8 absolute value FC. उसका TVLS है 13,160. Okay, so ये दोनों level का importance है. Nifty will kind of be between these two levels, 15,043.80 and 13,325.45 until one trades on either side. That is the post-closing tone of this period of January month in Nifty. Correct, very good. Now we go to February month. अभी February month में देखते हैं क्या हुआ है निफ्टी में. तो निफ्टी ये मंथ ओपन हुआ है RMSL हायर 14,731 का हाई बना है 2 फरवरी को, और RMSL हायर ओपन हुआ है, और उसका क्लाइंबिंग बाय लेवल बनता है RC 100% TVHS 14,921.60. यहाँ पे हम देखेंगे कि इमीडिएटली क्लाइंबिंग बाय लेवल ट्रेड हो गया है विदाउट एनी मिनिमम रिट्रेसमेंट. सो मंथली में निफ्टी अलर्ट बाइंग जोन में है, बिकॉज RMSL हायर ओपन एंड विदाउट मिनिमम रिट्रेसमेंट क्लाइंबिंग बाय हैज ट्रेडेड, और क्लाइंबिंग बाय ट्रेड होने के बाद भी अभी तक कोई भी मिनिमम रिट्रेसमेंट रिस्पेक्ट नहीं हुआ है. बराबर. ओके, अभी ये निफ्टी की बात है. अभी ये जो टीवी ट्रिगर प्राइस ऑन हायर साइड TPHS और TVLS है अपना,
TPLS, sorry, trigger price on lower side. ये next chart में we keep placing it, okay, in all the subsequent plans of monthly time. Last month January का 15,043 जो level आया था अपना TPHS, वो अगर place करते हैं तो it exactly comes between RC 100% and RC 121% of monthly time frame. So that level was approached today, and by 10 points, it was not able to trade that level today. So ये है current month का view के RMSL higher opens without respecting minimum retracement, climbing by manages to trade. Journey of this month as per ATR is complete. It has approached trigger price on higher side of January month PC no edgy, और वो trade होगा only when manages to trade 15,268.95. Great. ये बस मंथली व्यू सर यहाँ पे खत्म होता है. ईयर ऑफ कोर्स बाइंग का व्यू रहेगा अंटिल मंथ का सपोर्ट इंटैक्ट है. 14,235.25 अभी मंथ का सपोर्ट है अपना. So until Nifty is trading above 14,235.25, buying view should be maintained. But we are talking about a correction which will be a bargain buying opportunity in lot of good scripts, and Nifty itself maybe. But month view is that much, so we can go to week now. Shall we please TPLS also? Sir, you want me to cover TPLS? Yeah. Both sets, no? Okay, so TPLS will be approached only if monthly manages to trade with any SNR to sell, right, sir? Yeah, but we'll have to place it somewhere, no? Like how TPHS we have placed in between RC 100 and 120. Okay. All right. So, yeah, no problem, sir. So, in January month, the TPLS level is 13,325.45. If we place that in, yeah. 15,043 was the TPHS and 13,325.45. High का next level, low का next. हाँ, वो low यहाँ पे in the February month chart, if we place 13,325, it falls lower band में, so it falls in the IC zone. So 13,192.75 जो अपना lower band है, so 13,078.50 के नीचे TPLS gets traded below 13,078.50. बराबर. And we will say generally when okay, generally जब TPHS approach होता है this close, when TPHS इतना closely approach होता है, and if Nifty manages to trade or any script manages to trade with SNR to sell, हम लोग ये कह सकते हैं कि it might go and approach TPLS next, but that is only if 14,235 trades on lower side. So it's a long way to go, and let's not be pessimistic anywhere over here, because as of now we are trading with good support everywhere else. So probably retracement के बाद ये 15,268.95 can get traded. However, we'll go to weekly time frame, और week से हम लोग clue लेंगे, because month का tone है, तो clue तो हम लोग lower time frame, immediate lower time frame weekly से लेंगे. So we can go to weekly time frame and see what's happening in week. आपने जो कहा मैं आपसे क्लैरिफाई करूं. Yes sir, definitely, please. TPHS तक आ गया है, अब यहाँ पे चाहिए, यहाँ पे ATR जर्नी भी कंप्लीट हो गई है. TPHS price also has come, so buying can begin only above RC 127.2, 15,268.95, and there should be cautious buying or no buying. This is what you're trying to explain? Yes sir, absolutely. I would definitely suggest cautious, no more buying at this level is definite, and cautious buying on correction. This is what I wanted you to tell, no more buying at this level. Yes sir. Now shall I go to weekly time frame? Yes sir. Great. Tell me which date. Which date, Rona? Okay, weekly time frame, sir. Currently, we will see this week first. What is happening in this period of weekly time frame? 13 February 2021.
Okay. ये week Nifty has managed to open with higher gap and catching the falling knife. यहाँ पे ICRC open हुआ है, opening low. Today Nifty has opened. Yesterday it was an ICRR zone. Today आज Nifty open हुआ है ICRC में और उसका opening low है 15,064.30 और new BDP value है 14,695.40. So Nifty higher gap से open हुआ है, ICRC open हुआ है and RC 23.6 is approached. Okay. And कोई resistance नहीं है अभी फिलहाल Nifty में, but higher gap opening itself is a very with catching the falling knife is a cautious sign. But यहाँ पे हम लोग previous period देखेंगे Nifty में weekly time frame में थोड़ा to get a feeling कि क्या हो रहा है as per weekly time frame. Okay, यहाँ पे yeah, tell me sir. कवर करता हूँ. Yes sir. Saying ICRC open हुआ है और हायर गैप जो है 15,041 लो है, मंडे का लो, इट इज ग्रेटर देन न्यू बीडीपी, सो इट इज ICRC हायर गैप एंड कैचिंग द फॉलिंग नाइफ की थियरी भी है. लास्ट 9-10 महीने से हमने हायर गैप न सिखाया है न हमने कभी वेबिनार में डिस्कस किया है. फॉर द फर्स्ट टाइम आफ्टर 9 months, फॉर द फर्स्ट टाइम. नहीं तो हमेशा हम ICRC हायर गैप plus catching the falling knife हमारा favorite trade setup हुआ करता था, though it is non trending but favorite हुआ करता था. After 9 months for the first time we are discussing कि ICRC हो, higher gap हो और catching the falling knife हो तो strictly buying नहीं करनी चाहिए. बराबर ना रोना? Yes sir. Now it sounds like previous week. Okay. Previous week में Nifty मास्टर सपोर्ट से बंद हुआ है, डार्क ग्रीन लैडर भी बना है. 6 February week we will come to. 6 February week Nifty managed to open ICRC sorry RMSL higher. Nifty has opened RMSL higher और RMSL higher open होके it has मैंने opened RMSL higher ही पता चल गया था कि ये बढ़ जाएगा क्योंकि उसने PCR ट्रेड कर चुका था. 13,929 was the previous PCR of 30th January week. So PCR ट्रेड करके RMSL higher open हुआ था, क्लाइंबिंग भाई भी ट्रेड कर लिया, BDP भी ट्रेड कर लिया और मास्टर सपोर्ट से बंद हो गया है निफ्टी. जनरली इसके पहले 6%. Sorry sir. I'm just highlighting those who doesn't know about master support. Master support is nothing but RC 14.6%. Whenever it is trading with fresh support in RC, closes with fresh support in RC along with BDP and closes with PCS, then RC 14.6% is known as master support. जो हमने it is there in positional trading and passive trading support. That is what she is referring to. Master support RC 14.6, 13,765. Yes, Ronak, please carry on. Yes sir. So 13,765 मास्टर सपोर्ट बना है 6 February वाले वीक में. उसके पहले वाले वीक में हम लोग जाएंगे 30th January वाला वीक. 30th January वीक में Nifty had traded with ICRC open हुआ था Nifty. ICRC open होने के बाद it gave active resistance and then it gave fresh resistance और WDP trade करके lower band trade करने के बाद it managed to achieve 13,713 low, okay, which was also month FC 23.6. so वहाँ पे it break लग गया 13,713 and it has managed to close with a master resistance because यहाँ पे Nifty close with resistance below WDP trading lower band. So यहाँ पे 14,294.40 FC 14.6 TV absolute value became our master resistance. तो ये एक तरह से करेक्शन था या सेलिंग का इंडिकेशन था
और वहां से इमीडिएट बाइंग आ गया, ओके, इन द नेक्स्ट फॉलोइंग वीक, ओके। उसके पहले वाले वीक में जाएंगे, अभी 23rd January, सर लेट्स फर्स्ट टच 23rd January, देन वी कैन एक्सप्लेन सर द TPHS TPLS एज पर वीक। Can we go to 23rd January या chart sir? Okay. Now 23rd January chart sir में यहाँ पे निफ्टी में SNR to buy और sell दोनों हुआ है। Nifty has opened RMSL lower, 14,222 का लो है, opening low, and it traded the opening resistance. SNR to buy हुआ वहाँ पे, और then it managed to trade the upper band also by trading 14,583.80 trade करके upper band भी trade हो गया, RC 61.8 भी trade हो गया, 14,753 का high बना, और फिर वापस निफ्टी SNR to sell हो गया by trading 14.6 RC TVLS 14,433। सो हमने ये देखा है कि जब एक ही पीरियड में SNR to buy और sell दोनों होता है, तो ये पीरियड में हमें एक TPHS TPLS मिलता है, और निफ्टी और जनरली स्क्रिप्ट ये TPHS TPLS के बीच में रहता है until either gets traded. Same this is their same trade setup, similar trade setup to PC No Edgy. यहाँ पे हम देखेंगे 23rd January वाले वीक में अपना ट्रिगर प्राइस ऑन हायर साइड वाज 14,770.50, नेक्स्ट हाई का नेक्स्ट प्राइस देखना चाहिए। So in fact, it is 14,859.25. Sir, correction over here, sir, to our discussion. Yes. Sir, yes, sir. So the high is 14,753.55. So we will consider the TPHS as 14,859.25, sir. Correct. Okay. And the low of this period is 14,222.80. So low का next level है 14,096.95. So 14,096.95 becomes our trigger price on lower side. अभी 30th January वाले week में Nifty has managed to trade this 14,096.95 on lower side and close with resistance. Whenever a script manages to trade trigger price on lower side, जब lower side पे trade हो जाता है और resistance से बंद हो जाता है, जो उसका trigger price on higher side है becomes a very strong resistance. And कोई भी buying करने के लिए ये जो trigger price on higher side होता है उसको follow up support के साथ trade होना पड़ता है for any view change in view or buying view to come. तो वापस हम लोग 30th वाले वीक में जाएंगे सर, वहाँ पे we will see how trigger price on lower side is traded. So 14,096 when placed on this chart of 30th January, it falls between 38.2 and 61.8 FC. And 13,955 जब ट्रेड हुआ लोअर साइड पे, तो ये ट्रिगर प्राइस ऑन लोअर साइड वहां पे ट्रेड हो गया है और रेजिस्टेंस से बंद हो गया है। तो इस तरह से अगर देखे हैं तो 14,859 जो हमने देखा, जो ट्रिगर प्राइस ऑन हायर साइड है, that becomes a very strong resistance and that needs to trade on higher side, जो कि next week में the week we will go is 6th February sir. Now week 6th February वाले week में ये trigger price on higher side खाली approach हुआ है। Though Nifty has given us a master support, though Nifty has managed to trade BDP again, the trigger price on higher side was only approached, which was 14,859 something. Okay. So and okay, that's all right because daily time frame is in buying, month is in buying. हम ये सोच सकते हैं कि वीक भी आगे पीछे TPHS ट्रेड कर सकता है, लेकिन हायर गैप से ना, ये वीक में आते हैं सर, ये वीक वो हायर गैप से ओपन हुआ है, कैचिंग द फॉलिंग नाइफ से ओपन हुआ है। तो हायर गैप से ओपन होने के बाद, कैचिंग द फॉलिंग नाइफ होने के बाद ये TPHS ट्रेड करना इजी नहीं है। So that is why over here we will definitely see correction coming, and यहाँ पे वीक का PCS मास्टर सपोर्ट का पोस्ट क्लोजिंग सपोर्ट
है 14,388 of week 6th February. So any correction to the price of 14,600, which is I think the BDP of this week. What is the BDP of this week? We will see. Yeah, 14,695 is the new BDP of this week. So 14,695, 14,497 exact BDP level of this week. या फिर 14,388 पोस्ट क्लोजिंग सपोर्ट ऑफ लास्ट वीक, वहां तक का कोई भी एक करेक्शन पॉसिबल है यहाँ से. I really appreciate एक बार रिपीट कर लूँ आपने जो वीकली में समझाया. हमने 23rd जनवरी में गए, यहाँ पे हमने स्टॉप एंड यूज टू बाय, स्टॉप एंड यूज टू सेल दोनों देखा, और स्टॉप एंड यूज टू सेल का जो रेजिस्टेंस है हाई इज 14,753 और उसका एग्जैक्ट नेक्स्ट लेवल हमने 14,859.25 हमने टीपीएचए समझा, एंड 14,096 जो है जो स्टॉप बाजार से वो स्टॉप एंड यूज टू बाय हुआ था, उसको हमने टीपीएलएस लिया. 14,859 इज द टीपीएचएस एंड 14,096 इज द टीपीएलएस. और हुआ यूं कि भाई बाजार बाद में 741 तक आकर रिट्रेस होकर एग्जैक्टली 6 फरवरी के वीक में 14,859 which falls in between 127.2 and 161.8 और एग्जैक्टली वहीं तक आया. और टीपीएचएस को मिल के now nobody knows whether TPHS will be traded on higher side or not, but what she is trying to say is TPHS के पास अप्रोच होके प्रीवियस वीक में उसने TPHS ट्रेड नहीं किया एंड मेनली इज इंसिस्टिंग ICRC हायर गैप भी हो, कैचिंग द फॉलिंग नाइफ भी हो, वो सामने TPHS जिसको मिल चुका है ऑलरेडी, इट इज मेट, और यहाँ से अगर वो TPHS ट्रेड करना बहुत मुश्किल है. अकॉर्डिंग टू मंथली टाइम फ्रेम भी as she has explained, PC no HG, TPHS TPLS, and here she has explained stop and goes to buy sell TPHS TPLS. दोनों को blend करते हुए here though there is no sell indication yet, but यहाँ पे 100% मतलब she has used the word definitely there is a cautious buying, और यहाँ पे cautious buying में यहाँ पे buying करना ही नहीं चाहिए. We love to miss the opportunities initially. Correct, Rona? This is what you are trying to say? Yes, sir, absolutely. अच्छा, लास्ट ये व्यू जो है कि बाइंग नहीं करना है, तो कब कंफर्मेशन, कैसे कंफर्मेशन मिलेगा कि चलो अब सेल करें, और जो करेक्शन एक्सपेक्टेड है एटलीस्ट मिनिमम करेक्शन FC 23.6 तक या 38.2 तक, BD 61.8 तक, ये करेक्शन जो एक्सपेक्टेड है, ये कैसे कंफर्मेशन मिलेगा कि यहाँ से हमको अब ये करेक्शन इज इन एक्शन? So you want me to answer this? Yes, please. I want you to explain this. I know you know the answer, but I want you to explain. Okay, वीकली टाइम फ्रेम में सबसे पहले एक्टिव रेजिस्टेंस मिलना हायर गैप फिल करने का एक सबसे पहला इंडिकेशन है कि वीकली टाइम फ्रेम में हमें एक्टिव रेजिस्टेंस मिलेगा बाय ट्रेडिंग 14,959.95. That will be the first indication कि वीकली टाइम फ्रेम गैप फिल करना चाह रहा है and it wants to go and meet BDP or its post closing support or go to its lower band and approach lower band. दूसरा क्लू हम डेली से ले सकते हैं कि डेली टाइम फ्रेम में एक स्नेक आता है. We can go to daily time frame. Rising channel 14.6 will be traded on low side or not, उसका क्लू हमको डेली टाइम फ्रेम से मिल जाएगा. डेली टाइम फ्रेम टुडे आज निफ्टी ने SNR2 सेल दिया है. 15,000 ओके. RMSL हायर ओपन हुआ था, क्लाइंबिंग बाय ट्रेड हो गया एंड रिट्रेसमेंट भी हुआ था. आफ्टर रिट्रेसमेंट इट मैनेज टू ट्रेड क्लाइंबिंग बाय, फिर RC 100% भी ट्रेड हो गया 15,247 पे. एंड
RC 100 ट्रेड होने के बाद it gave a SNR to sell by trading 61.8 TVLS, RC 61.8 TVLS. तो 15,178.50 पे एक SNR to sell दिया है निफ्टी ने, और आज का लो बना है 15,064.30. So drifting cell level will go to 15,059 or 15,025. Sir, how are we taking the lowest low, or we are taking 15,059.70? 15,059.70. Okay, so 15,059.70 is the drifting cell here. यहाँ पे जब 15,059.70 ट्रेड हो जाता है और वीक में भी एक एक्टिव रेजिस्टेंस मिलता है, so which is 14,959 के नीचे है वो. I think we should wait for FC 61.8 to trade on lower side for any this thing confirmation, the view that gap needs to be filled, the weak gap will be filled. 14,962.05 when gets traded on lower side. Or that will be one confirmation that Nifty wants to fill the gap. And then we can see some correction coming. So should have a cautious view of any fresh buying should be totally avoided at this point. Second, one should have a cautious view on Nifty over here, and we can see retracement and correction. And until month support is intact, again, we will not be anywhere looking at, we will only see this as correction. There's no selling. This is only correction. But there could be a good correction coming. So we will get a chance of bargain buying in good scripts, and one should not hastily buy over here at this point. And cautiously scripts वगैरह जो भी है, निफ्टी है, scripts है, whatever we are trading, उसको ध्यान से पढ़ के bargain buying opportunity लेने का try करना चाहिए यहाँ पे. और निफ्टी में तो particularly cautious view होना ही चाहिए यहाँ पे at this point, I feel. So repeat what you said. He's saying that Yes, avoid yes. buying completely, strictly, and यहाँ से NCP to sell जो है 15,018.30. This is the snake price as of now. कल अगर RMA से लोअर खुल गया तो ये NCP to sell will change accordingly. स्नेक का प्राइस जो है और लेटर का प्राइस जो है यहाँ पे मिलती है. Currently as of now snake price is 15,018.30 के नीचे ट्रेड किया and then it should close its resistance. What we see with ICRC higher gap and catching the falling knife जो है नॉन ट्रेंडिंग ट्रेड है. करेक्शन सेल जो है वो ट्रेडर्स जो है वो डेफिनेटली ले सकते हैं बिकॉज इट इज ए वेरी गुड जर्नी. बट जब तक मंथली का सपोर्ट इंटैक्ट है और मंथली सपोर्ट काफी दूर है अभी, और मंथली सपोर्ट के पास जब आता है तो जिस तरह से यहाँ पे हम बाइंग कॉशियस कह रहे हैं, उसी तरह से मंथली के सपोर्ट के पास जब आएगा तो डेफिनेटली इन कॉशियस होगी एंड एनी रिवर्सल फ्रॉम देयर वो भी स्टॉक्स में बाइंग आती है जो हम जानते हैं करते हैं. Accordingly, we can look for the traders and investors. We consider this declining price if any as correction sell. In monthly, it will be retracement. In weekly, it will be correction sell. Retracement इसलिए कहते हैं कि any declining price above support is a retracement, and correction sell इसलिए कहते हैं कि buying की judgment में बाजार रेजिस्टेंस से चलता है. हायर गिव इन कैपिंग द फॉलिंग नेट का करेक्शन सेल हम लेते हैं, सालों से ले रहे हैं. लास्ट 2 महीने से ही अपॉर्चुनिटी लकीली अच्छा होना किसी को दिखाया है नए वालों को, और न कभी वेबिनार में एक बार भी डिस्कस नहीं हुआ. एंड दिस फॉर द फर्स्ट टाइम वी आर टॉकिंग अबाउट द नॉन ट्रेंडिंग ट्रेड करेक्शन सेल व्हिच इज ए वेरी गुड ट्रेड फॉर ट्रेडर्स टू सेल. राइट रोनक, बराबर है? Yes, sir. Anything else you want to comment? No, sir. Thank you very much. Let us all thank Ronak for explaining very beautifully point to point. मैं यहाँ पे रिक्वेस्ट करूँगा एवरी 60 पार्टिसिपेंट्स को, जब भी आप चाहो, मैं चाहता हूँ कि आप लोग सब
अपनी बात जो है, अपना सेटअप जो खास करके जो ट्रेड सेटअप सिखाया गया है उसमें आप जो कंसिस्टेंटली फॉलो करते हैं, तो डेफिनेटली प्लीज इस प्लेटफॉर्म पे शेयर किया कीजिए। इससे आप भी एम्पावर होंगे और बाकी शिक्षित जो है उनको एक मैसेज जाएगा कि कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। वही हिमांशु शाह है जिसने सबको समझाया है। तो उस समय तो द वे रोनक has learned और सीनियर पार्टिसिपेंट्स have learned, it was very 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 डिफिकल्ट। कैसे सीख लिए यही नहीं मालूम मुझे, मैंने नहीं सिखाया, वो कैसे सीख लिए उनको ही मालूम। एंड दे हैव लर्न वेरी वेल। आज जो सॉफ्टवेयर जिस लेवल पे है उसमें नहीं सीख सकते हैं, नहीं आता है, नहीं होता है, वैसा तो होना ही नहीं है। इट इज पॉसिबल। नाउ हम यहाँ पे निफ्टी का व्यू जो है हमने बहुत अच्छे से शेयर कर लिया, हो गया। मैं फिर से कहूँ, मंथली में पीसी न्यूएसजी का टीपीएचएस आया है, टीपीएचएस के पास बाइंग नहीं करनी चाहिए, वहाँ पे रिट्रेसमेंट आएगा। वन सेंटेंस। वीकली में स्टॉप एंड यूएस टू सेल का जो रेजिस्टेंस था, सपोर्ट था 14,096, वो लोअर से ट्रेड करके वो टीपीएचएस तक आ गया है 15,000, 14,859 तक। इसके लिए भी since TPL is traded and TPHS तक जो भी है इट इज ए रिट्रेसमेंट, इसलिए भी वहां पे बाइंग नहीं करनी चाहिए। वीकली में आईसीआरसी हायर गैप और कैचिंग द फॉलिंग नाइफ, एंड सामने ही जो टीपीएचएस है 14,859 का वो वहीं खड़ा है, इसके लिए वहां पे बाइंग नहीं करनी चाहिए। और सेलिंग का कंफर्मेशन तब मिलेगा, इंडिकेशन इंडिकेशन तब मिलेगा जब डेली में एक स्नेक आवे, डार्क रेड कलर का स्नेक, यानी कि ड्यूरिंग मार्केट आवर्स एलसीपी टू सेल ट्रेड कर ले एंड क्लोजेस विद, तो हम सेलिंग इनिशिएट कर सकते हैं, करना चाहिए। एंड इफ क्लोजेस पीसीआर तो हम कहेंगे कि अब सेलिंग का इंडिकेशन मिला, और फिर वापस उस पोजीशन को हमको स्क्वायर ऑफ करनी ही होगी। तो अभी कंफर्मेशन तब मिलेगा जब वो वीकली में भी आरसी 14.6 टीबीएलएस लोअर साइड ट्रेड करेगा। एंड किस तरह से वो लोअर साइड ट्रेड करता है दैट मैटर्स। समझ लो कि कल का कल ये हो गया तो वापस वी आर हैविंग मेनी डेज इन द हैंड। अभी आज ट्यूसडे ही हुआ है, राइट? तो वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे 3 दिन पड़ा है, तो 3 दिन में वापस एक वीकली में मिनिमम रिट्रेसमेंट आके देन इट विल स्ट्रेट कम टू फॉलिंग चैनल, anywhere between falling channel 23.6 and 38.2 ये वीक का ट्रेड हुआ। एक रिक्वेस्ट और करनी थी कि जिन लोगों ने, खास करके फ्रेशर्स जो है, उनको क्या सिखाया गया है, एक्टिव सपोर्ट, फ्रेश सपोर्ट, स्टॉप एंड यूज टू बाय सेल, हाउ मार्केट बिहेव्स व्हेन अप्रोचेस अपर बैंड 100% टू 61.8%, और उनको एफआरएआर सिखाया गया है, उनको एफआर सिखाया गया है, और उनको मल्टीपल लेडर्स एंड डिसेंट हाई ट्रेड्स, इतना ही सिखाया गया है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं सिखाया है। तो हो सकता है कि भाई हम इसके अलावा आरएआर की बात करते हैं, रिवर्सल प्राइसिंग की बात करते हैं, पीसी जी, टीपीएचएस, टीपीएलएस तो रिपोर्ट ही नहीं है हमारे पास, सिर्फ अकरेंसेस ट्रैक करके हम उसकी भी बात करते हैं। आईसीआरसी हायर गैप कैचिंग द फॉलिंग नाइफ भी आज हम 9 महीने के बाद फर्स्ट टाइम हम इसके बारे में आज बात कर रहे हैं। तो ऐसा हो सकता है कि जो फ्रेशर्स है, आज मैंने मैसेज में भी लिखने की कोशिश की, फ्रेशर्स हो या कोई भी हो, जिन्होंने जो कॉन्सेप्ट कभी सीखा नहीं, समझा नहीं, अडोप्ट किया नहीं, फॉलो किया नहीं, तो उनको ऐसा लगेगा, उनको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि मुझे कुछ नहीं आता है। दिस आई वांट टू मेक इट वेरी क्लियर कि जो ट्रेड सेटअप मैंने शेयर नहीं किया है, मैंने एक्सप्लेन नहीं किया है, और शायद मैंने शेयर किया है, एक्सप्लेन किया है, लेकिन आपने अडोप्ट नहीं किया है, उसको एग्जीक्यूट नहीं किया, उसकी प्रैक्टिस नहीं की, फॉलो नहीं किया है, तो आपको वेबिनार में तो हर तरह की बात होगी। फॉर एवरी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज वी कैन नॉट हैव द डिफरेंट डिफरेंट वेबिनार्स। तो ये आपको अपनी बात लिमिट रखनी होगी कि हाँ, ये मैंने नहीं सीखा है, ये सर ने नहीं सिखाया है, इसलिए मुझे नहीं आता है, आगे आगे सिखाएंगे। पहले पहला लेवल पड़ाव क्रॉस करो, फिर दूसरा पड़ाव क्रॉस करेंगे, फिर धीरे धीरे इस तरह से जो सीनियर जितने टाइम में आगे बढ़े हैं उससे 1/5 टाइम में मैं आपको आगे लेके जा सकता हूँ। लेकिन वॉट एवर वी हैव नॉट लर्न, तो इतनी हमारे में ये समझ होनी चाहिए कि जो मैंने नहीं सीखा है वो कैसे समझ में आएगा ना। यू शुड नॉट फील लो, यू शुड नॉट फील हताश हो जाना, डिप्रेस हो जाना कि मुझे नहीं समझ में आ रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है, राइट?
और मेन बात सब कुछ सीखना समझना ज़्यादा उसमें नहीं है, जो हमने सीखा हुआ है, जो हमने समझा हुआ है, उसके ऊपर मास्टरी करना, दैट मैटर्स ए लॉट, एंड उसी को कंसिस्टेंटली अडोप्ट करना, मास्टरी करने के बाद कंसिस्टेंटली अडोप्ट करना। ये एक रिक्वेस्ट है फ्रेशर से और बाकी लोगों से भी, जो मैंने कह दिया, मैसेज में भी कहा, अभी भी कह रहा हूँ। सेकंड रिक्वेस्ट है, ईच एंड एवरी सीनियर शिक्षित, चाहे आपको बहुत अच्छे से समझाना आए या नहीं आए, बट प्लीज अटेम्प्ट। मैं हूँ साथ में, जहाँ जहाँ आप अटकोगे तो आई विल टेक केयर। आपको भी तो समझ में आ ही रहा है ना, मुझे कहाँ समझाना आता है। और मुझे समझाना आता है तो वो 3 हफ्ते में पूरा समझ जाते हैं। और फिर मैं वो खुद जो प्रैक्टिस करता है, जो सीखता है, समझता है, प्रैक्टिस करता है, वही तो सीखता है। तो आप लोगों को ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि मुझे समझाना नहीं आता है। हर एक की अपनी अपनी स्टाइल है, एंड ऑलवेज डेफिनेटली यू शुड अटेम्प्ट, एंड दिस इज हाउ द वेबिनार्स शुड बी ऑर्गेनाइज। स्लोली उस लेवल पे हमको आना है, एवरीवन हैज टू अटेम्प्ट। एंड एक बार हम इस तरह से प्रेजेंटेशन देते हैं, इस तरह से हम एक बार एक्सप्लेन करते हैं ना, सो बहुत एम्पावर होते हैं। दिस इज द फर्स्ट बेनिफिट। सेकंड बेनिफिट इज, जो बाकी शिक्षित इतना सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, तो वो भी मोटिवेट होते हैं, वो भी एनर्जाइज होते हैं। अब मेरा सुनना तो क्या है, वो रोज ही सुन रहे हैं, उसमें कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। जब वो आपको सुनते हैं ना, तो उनको एक डिफरेंट लेवल का मोटिवेशन मिलता है, एनर्जाइज हो जाता है। तीसरा बेनिफिट ये है कि ऑब्वियसली आई एम ऑल्सो एम्पावर्ड। मुझे भी अच्छा लगता है कि यस, कि अच्छा चल रहा है, मैं जो सिखा रहा हूँ, समझा रहा हूँ, वो लोग समझ भी रहे हैं और समझा भी पा रहे हैं। नाउ इस बात पे हम डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि हम आज एक्चुअली हमारा मेन एम जो था इज दिस, कि स्टेप बाय स्टेप जो रिसेंट है, रिसेंट लोग की बात जो है वो मुझे समझानी है। तो उसके लिए मैं चाहूंगा कि कोई एक पार्टिसिपेंट मेरे साथ पार्टिसिपेट करे। स्टेप बाय स्टेप नोट्स लिखाऊंगा, करूंगा, जैसे हमने 3 फरवरी को किया था। आज वही वेबिनार हम केस स्टडी के साथ फिर से रिपीट कर रहे हैं। आई रिक्वेस्ट एनी वन टू पार्टिसिपेट विथ मी। पार्टिसिपेट करने के लिए इसलिए कहता हूँ कि मैं स्लो हो जाऊँ, नहीं तो मैं क्या थोड़ा फास्ट चले जाता हूँ। दैट शुड नॉट हैपन, इट शुड रीच एवरीवन। कौन पार्टिसिपेट करेगा? काफी लोगों ने हैंड रेज किए हैं, बट मैं चाहता हूँ कि जो स्लोली पार्टिसिपेट करे, तो स्लो, जैसे कौन करेगा? इंटरेक्ट करना चाहिए, पार्टिसिपेट करना चाहिए, क्वेरी पूछनी चाहिए, तो मुझे आपकी लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग है और समझ में आती है, एंड आई कैन टेक यू टू द नेक्स्ट लेवल। और आप पार्टिसिपेट करते हो, इंटरेक्ट करते हो, तो मुझे भी समझ में आता है कि मैंने कितना समझाया है। यस संजय। आप मुझे अनम्यूट करो तो हम बात कर सकते हैं। 4-5 केस स्टडी 10 मिनट के अंदर करने हैं हमको, और आराम से करने हैं। प्लीज पार्टिसिपेट। संजीव, संजय, अनम्यूट करो मुझे। ठीक है, वो अनम्यूट नहीं कर पा रहे हैं। एनीवन एल्स? नहीं नहीं, एकदम फ्रेशर भी नहीं है। हम्म। हितेश, हितेश भाई, हितेश भाई, अनम्यूट तो करो भाई। अरे सर, हाँ सर, किया ना हम्म। सर। हम्म। सबसे पहले हम केस स्टडी लेते हैं, जिंदा स्टील। मैंने कुछ नोट करके रखा हुआ है, इसी को हम लेते हैं, क्योंकि उसमें कुछ लर्निंग है। और यहाँ पे मिस्टेक होने के चांस है या नहीं है मुझे नहीं मालूम, बट एक आध पार्टिसिपेंट से इंटरेक्ट करते हुए मुझे लगा कि आई शुड हाईलाइट।
हिंदी में पार्टिसिपेट करसो ना? यस सर। बोलो स्टेप नंबर 1 मल्टीपल लेटर से चल रहा है, लिखना है जिसको लिख ले। मल्टीपल लेटर से चल रहा है, राइट? स्टेप यस नंबर सर। 2 रिसेंट हाई बिफोर द स्नेक। डार्क स्नेक, सब डार्क सब रेड। स्नेक, सब डार्क रेड स्नेक और उसके पहले एक लेडर होनी चाहिए। तो ये लेडर और सब डार्क रेड स्नेक के बीच में हाईएस्ट हाई क्या है? कौन सा टॉप हाईलाइट किया हुआ है? 301। सुभाव से बोलो, जल्दी बोलो यार। 307 सर। ये देखना है ना सर, 20 तारीख का पीसीसीबी। तो 31050 लिए तो यस सर। और सर 311। 307 लिए कि 310-50 लिए? 310-50 सर। ठीक है, तो लिखो स्टेप नंबर 2 ड्यूरिंग द स्नेक जर्नी द रिसेंट हाईएस्ट हाई इज 310.5। लिखा? हाँ सर। नाउ 310.5 जो है 8 फरवरी को आया, तो क्या 310.5 का नेक्स्ट लेवल हायर से ट्रेड किया? तीन सौ 14.55। नो सर। नहीं किया ना? तो नहीं यहाँ पे किया हम सर। लिखेंगे एक बात, ये नो हाउ ये समझ लो, शायद एक दो बार के लिए डिफिकल्ट होगा, लेकिन सीख जाओगे, क्योंकि यही से है ना पोजिशनल ट्रेडिंग, पैसिव ट्रेडिंग की शुरुआत होती है। दो इट इज नो हाउ फ्री, बट ये नो हाउ में नहीं आता है कि प्राइसेस आर राइजिंग और फॉलिंग। मल्टीपल लीडर से चल रहा है तो प्राइसेस आर राइजिंग, यस देन इट सर। विल कंटिन्यू टू फर्दर। नया कब बढ़ेगा? जब 310-50 ट्रेड करेगा तब। बराबर है? यस सर। और 310-50 8 फरवरी को आ गया। हाँ ना, कहीं बोलो भाई। यहाँ सर। हाँ, तो अब यहाँ से 8 फरवरी के बाद मुझे अगर ये इससे बात करनी हो कि प्राइसेस आर राइजिंग और फॉलिंग, राइजिंग, व्हेन इट विल राइट। कंटिन्यू टू राइज फर्दर, व्हेन इट विल कंटिन्यू टू राइज फर्दर, तो मुझे ये पीसीसीबी लेना चाहिए 314.95। ये 314.95 हायर से ट्रेड करेगा तो ही बढ़ेगा, तो ये यस हाई सर। ट्रेड किया हुआ मार्केट। बराबर है? बराबर। તમે આ ફોલો કરો છો કે નથી કરતા? રિસન્ટ ભાઈ करूँ छे सर। यस सर કરો करूँ છો છું। તો તમે તમે જે સમજ છે એ અત્યાર સુધી 310.5 ले रहे थे या 314.95 ले रहे थे? सर 340.95। वेरी गुड, थैंक यू वेरी मच। अब तक 314.95 ले रहे थे ना? हाँ सर वही ले रहा था। ग्रेट, वेरी गुड। तो अब रिसेंट हाई ट्रेड किया होता मानेंगे जब ये पीसीसीबी 314.95 ट्रेड करे, और आज 9 फरवरी को हम 314.95 का नेक्स्ट लेवल रखेंगे। बोलो क्या? 317.70। बराबर। तो क्या 370-17 ट्रेड किया? आरसी 61.8 आज ट्रेड किया? नो सर। तो रिसेंट हाई ट्रेड किया मानेंगे? नहीं सर। अच्छा, अब एज पर नोट्स ड्यूरिंग द पीरियड, अगर एक हम नो हाउ में नहीं जा रहे हैं, फ्री फ्रॉम नो हाउ बात कर रहे हैं, तो अकॉर्डिंग टू नोट्स की एक बार की स्टॉप एंड यूज टू सेल हो जावे या फ्रेश रेजिस्टेंस इन एक्सी मिल जावे, हम उसको ट्रैक करना क्या करेंगे? छोड़ देंगे। बराबर? यस सर। बराबर है सर। करना छोड़ दें
नहीं सर। ट्रैक करना छोड़ देना इसको, क्योंकि स्टॉप एंड हाँ यूज सर, सेल आज हो तो गया आज। सेल हो गया, आज छोड़ रहा है सर। मैं नो हाउ नहीं डाल रहा हूँ, अकॉर्डिंग टू नो हाउ इसको ट्रैक करना हाँ नहीं छोड़ना चाहिए, बट फ्री फ्रॉम नो हाउ रखते हैं कि भाई मल्टीपल लेडर है जो हम फिल्टर कर सकते हैं, रिसेंट हाई जो हमको दिखता है, और रिसेंट हाई ट्रेड करे तो हमको बाइंग करना है 5% के लिए, बस इतना ही है। और रिसेंट हाई ट्रेड करने से यस ये सर। यहाँ पे चूक गया तो हम किसी से भी रखेंगे, बस ये मुझे हाईलाइट करना था आज, बराबर ना जो आप कर रहे हो यस सर। ना। दूसरी हाँ बात बराबर है जो सर। नहीं कर रहा है आपको करेक्ट कर ले ना। एक और स्क्रिप्ट लेंगे हम, टाटा स्टील। मैं फिर से कह दूं, नो हाउ वाले जो कर रहे हैं उनके लिए ये अब का जो हम सिखा रहे हैं, ये नो हाउ वाले के लिए नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ फ्री फ्रॉम नो हाउ जो करते हैं उनके लिए हम बात कर रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप, ताकि हर एक तक हमारा ट्रेड सेटअप बहुत इजीली पहुंच सके। फिर एक बार वो लोग भी धीरे धीरे नो हाउ में आ जाएंगे, पर अंदर तो आने दो। टाटा स्टील मल्टीपल लेडर हुआ, राइट, मल्टीपल लेडर से चल रहा है। स्टेप नंबर 1 इधर से, हाँ या ना? यस यस सर। अच्छा, अभी रिसेंट हाई ढूंढ के बताओ कौन सा है। सर ऊपर जाइए, डार्क स्नेक से पहले का। हाँ सर, 699.50। 619.50 लेंगे। यस सर। आपने कहा डार्क रेड, डार्क, अभी आप बोले कुछ डार्क रेड स्नेक के पहले का है, अभी आपने बोला ना हाँ हाँ सर। 731.5। अच्छा, वो डार्क नहीं था। ओके ओके, 731.50। कोई भी हाई पकड़ के मत लो। नहीं नहीं डार्क सर, रेड वो किसी मुझे को, लगा वो डार्क। अच्छा आपको क्या लगा? वो डार्क स्नेक है सर। नहीं ये आपकी, आपको मालूम नहीं था या अभी समझने में समझाने में गलती हुई है आपकी? नहीं नहीं मैं सर, आपको नहीं इसलिए सर, बोल रहा हूँ मैंने कि तो आपको know how है। नहीं सर, वो मुझे मालूम है, लेकिन वो मुझे लगा वो डार्क स्नेक है, इसलिए मैंने बोल दिया सर। आपको लगा ये डार्क है और ये डार्क नहीं है, यूँ बोल रहे हो? क्या बोल रहे हो? हाँ सर। हाँ सर, वही बोल रहा हूँ सर। अच्छा ठीक है, आपको लगा कि ये डार्क नहीं है। हाँ हाँ सर, इसलिए। ओके, अदरवाइज डार्क रेट के पहले का हाई जो है वो 731.5 है, 699 नहीं है, बराबर। हाँ सर। और समझ लो यस कि सर। कोई 690, ये 699 भी लिया है, अगर किसी ने 699 भी लिया है तो जो गलत है, बट फिर भी हम देखते हैं कि 699 कब आया पहली बार? 8 फरवरी को। तो 699 हाफ का नेक्स्ट लेवल क्या है? 703.55। जो ट्रेड हो गया, यस सर। मतलब बाइंग आ गई, राइट। यस सर। तो अकरेंस पीरियड में हम बाइंग करके बाइंग की पोजीशन क्या करेंगे? स्क्वायर ऑफ करेंगे। एक्चुअली 3:30 बजे ही आया तो बाइंग का कोई मौका ही नहीं था, वैसे भी हाँ हम सर। कोई 3:15 बजे फ्रेश बाइंग नहीं करते, बराबर ना। बराबर है सर। अब प्राइसेस आर राइजिंग और फॉलिंग। राइजिंग। अच्छा, नया कब बढ़ेगा? तो पहले 731 का 715 7:31 715 आया सर। मैं कह रहा हूँ कि हमने 699 ही गलती से भी लिया हो तो 699 ट्रेड कर हाँ सर। लिया 8 तारीख, अब नया कब बढ़ेगा? हाँ सर, 715 आया सर, ट्रेड करेगा सर। 715 हाइट से ट्रेड करेगा तो, राइट, नहीं तो यस सर। 686 में मिलेगा ना। हाँ सर। तो 715 हायर से ट्रेड किया कि नहीं किया देखते हैं। 715 का नेक्स्ट लेवल क्या है?
71995 वो ट्रेड किया आज? नहीं सर। तो हम क्या कहें इसको? बाइंग नहीं है ना, फॉलो बाइंग नहीं हाँ है। बाइंग नहीं है इसमें, बाइंग नहीं है इसमें। तो 686 TCS तक आ गया, ठीक है। हाँ सर। आई एम हाईलाइटिंग वन थिंग कि भाई रिसेंट हाई कभी ट्रेड करने से चूक गया हो और वहीं तक आया हो तो उसका पीसीसी भी हमको कंसीडर करना है फॉर फर्दर राइज इन प्राइस। जो हितेश भाई कर रहे हैं बट कोई और नहीं कर रहा हो तो प्लीज उसको खास इस बात को नोट कर लें। और दूसरी बात हम ये भी हाईलाइट करना चाहते हैं कि कोई भी हाई नहीं पकड़ना है। पूरी स्नेक की सीरीज आप देख लो, उसमें जो हाईएस्ट हाई है वो हमको लेना है, जो इस केस में 731 हाफ है। अब कल हमने जो टाटा यस स्टील सर। का जो व्यू दिया था उसको और इसको कुछ लेना देना नहीं है, वो नो हाउ बेस्ड था और वो भी सही है। और यहाँ पे हम फ्री फ्रॉम नो हाउ मल्टीपल लेडर एंड रिसेंट हाई ट्रेडेड कर रहे हैं। तो यहाँ पे अभी ये स्टॉप एंड यूज टू सेल हो गया, राइट? यस और नो? ट्रेड लिया यस नहीं सर। बट स्टॉप एंड यूज टू सेल हो गया। तो ड्यूरिंग द पीरियड हमारा टारगेट आने से पहले अगर वो स्टॉप एंड यूज टू सेल हो गया हो या फ्रेश रेजिस्टेंस इन एफसी मिल गया हो तो ये टाटा स्टील को भी ट्रैक में रखना चाहिए, नहीं रखना चाहिए? रखना चाहिए सर। नोट्स पढ़ो, गो थ्रू द नोट्स कि कब ट्रैक करना छोड़ना उसको। सर जब रिसेंट हाई ट्रेड करता है हायर साइड और स्टॉप एंड यूज टू सेल होता है तब छोड़ना है सर। हाँ तो स्टॉप एंड यूज टू सेल हो गया ना। हाँ सर, लेकिन सर अभी रिसेंट हाई सर 715 के आगे का 790 तो वो तो ट्रेड नहीं हुआ ना सर। हाई ट्रेड करके स्टॉप एंड यूज टू सेल हो या स्टॉप एंड यूज टू सेल हो, आपकी नोट्स जो ओके। भी है उसमें हिंदी लैंग्वेज में कर लो। एक बार फ्रेश रेजिस्टेंस मिला ना, स्टॉप ट्रैकिंग। हाँ सर। ओके। ओके डन सर। मैं भी देखता हूँ नोट्स में मैंने बराबर लिखा कि नहीं लिखा। सीखा है तो ऐसे ही है। होल्ड एंड स्टॉप ट्रैकिंग वंस 5% इज अचीव्ड और व्हेनेवर ट्रेड्स विद फ्रेश रेजिस्टेंस, बराबर ना? इफ एनी बराबर है सर। मिला ना फ्रेश रेजिस्टेंस हाँ सर, मिला मिला सर। तो स्टॉप ट्रैकिंग। यस सर। वेरी गुड। अब हम एक स्क्रिप्ट और लेते हैं, कौन सी थी? अंबुजा सीमेंट। कोई और पार्टिसिपेट करना चाहेगा? ठीक है, हितेश सर बोलो। मल्टीपल हाँ लीडर सर। से चल रहा है 2 आज फरवरी को। मल्टीपल लीडरशिप चल रहा है। सेटिस्फाइड? यस सर। अच्छा, दूसरा बोलो अभी रिसेंट हाई कौन सा लो? स्नैक से पहले का सर, या मल्टीपल स्नैक से उससे पहले का सर। क्या है वो? हाँ 27460 सर। वेरी गुड। देखो रिसेंट हाई 274.60 हमको ट्रैक पे रखना है। अब 274.60 मल्टीपल लीडर बनने के बाद 2 फरवरी को हायर से ट्रेड किया कि नहीं किया ये देखते हैं। 274.60 मल्टीपल लीडर बनने के बाद उसी दिन 2 फरवरी को आया तो 274.60 क्या हायर से ट्रेड किया है? 280 280 सर। क्या नो, ट्रेड किया है? नहीं किया है सर। वेरी गुड। तो अभी हमारा प्राइसेस आर राइजिंग मल्टीपल लीडर के हिसाब से, बट प्राइसेस आर राइजिंग, बट व्हेन इट विल कंटिन्यू टू राइज फर्दर? 280 हायर से ट्रेड करेगा सर। यस। और 280 टू हायर से ट्रेड नहीं किया ना तो सीधा पीसीएस 261 भी आ जाएगा। हम क्यों हायर से करने की वेट करते हैं? क्योंकि हायर से ट्रेड नहीं किया तो 261 आता है, बराबर ना? इसलिए हम बाइंग नहीं करते। यस सर। तो क्या उसके बाद 280 280 एक बार भी ट्रेड किया? नहीं किया है सर।
ओके, अब यहाँ पे मुझे इसको ट्रैक में रखना है कि नहीं रखना है? रखना है सर। कैसे? यहाँ पे पीसीएस से बंद हुआ है, यहाँ पीसीएस से बंद हुआ है, आज पीसीआर से बंद हुआ ना, तो आज स्टॉप एंड हाँ सेल सर। हुआ है कि हुआ? देखो, इन बिटवीन में जब ट्रैक पे मुझे तब रखना है जब वो एक बार भी रेजिस्टेंस नहीं दिया हो, फ्रेश रेजिस्टेंस। हाँ सर। एक बार फ्रेश रेजिस्टेंस दिया स्टॉप एंड सेल होकर या लोअर बैंड ट्रेड करके, तो अब ये स्क्रिप्ट को हमको ट्रैक में नहीं रखना है, ये फ्री फ्रॉम नो हो गया। आज यहाँ पे स्टॉप हाँ एंड सर। सेल हुआ, हाँ सर। तो इसकी स्क्रिप्ट को ट्रैक में रखें या नहीं रखें? नहीं रखना है सर। तो अभी से मेन बात तो ये देखो कि इसको ट्रैक में रखना है या नहीं रखना है। दो बात ही हाईलाइट कर रहा हूँ कि रिसेंट हाई जैसे आज टाटा केमिकल ने ट्रेड कर लिया और हाथों हाथ 5% दे दिया, वैसा हर स्क्रिप्ट में नहीं होता है। बहुत बार वो रिसेंट हाई तक आता है, कभी कभार रिसेंट हाई ट्रेड कर लेता है, लेकिन जब भी रिसेंट हाई तक आया हो या रिसेंट हाई ट्रेड कर लिया हो, तो उस दिन का जो पीसीसीबी है और पीसीएस है वो हमको नोट करके रखना है। और दूसरी बात मैं ये ओके सर। हाईलाइट कर रहा हूँ, ड्यूरिंग द पीरियड अगर फ्रेश रजिस्ट्रेशन दे दिया हो तो उस क्लिप को ट्रैक करना छोड़ दो, लेकिन छोड़ने के ओके। बाद में रिक्वेस्ट है फोल्डिंग हैंड्स के साथ कि कुछ 25 30 40 50 ट्रेड करने के बाद में 1 2 3 महीने बाद में जब आपको लगे कि हाँ मैं इस लेवल पे कंफर्टेबल हो गया हूँ, तो प्लीज दिस इज नॉट द लेवल टू बी लर्न। हमको यहाँ से आगे थोड़ा सा नो हाउ, बहुत ज्यादा ऐड नहीं करूंगा मैं, डर के कह रहा हूँ, रिक्वेस्ट करके कह रहा हूँ, थोड़ा सा नो हाउ। तब अगर ये भी हम सीख जाएंगे तो थोड़ा सा नो हाउ हम ऐड करके उस स्क्रिप्ट को कैसे ट्रैक पे रखना, रडार पे रखना, वो भी हम सीखेंगे। ओके। सीखने की तैयारी रखनी है, यस सर। राइट? या राइट सर। क्यों? क्योंकि कैसे समझाऊं आपको, जो स्क्रिप्ट ट्रैक से निकल जाती है ना, स्टॉप एंड यूज टू सेल होके या रेजिस्टेंस देके, वही स्क्रिप्ट है ना प्रीफर करना चाहिए, दैट ऑफर्स मोर देन 5% इन कमिंग पीरियड, जो रडार पे थी और निकल गई। बट क्यों क्यों उसको ट्रैक पे रखना है? क्योंकि बाइंग का जजमेंट जो है वो तो इंटैक्ट है ना। यस सर। हम स्टॉप सेल में निकलते हैं, फ्रेश रेजिस्टेंस में निकलते हैं, हम प्रॉफिट बुक करते हैं या लॉस बुक करते हैं, वो एग्जिट लेवल से है। बट वो बाइंग का जजमेंट जो है वो चेंज नहीं करता है। बाइंग का जजमेंट कैसे चेंज करता है, ये हमको नो हाउ में हमको सीखने को मिले कि कब तक बाइंग के जजमेंट को हम पकड़ के रखें। तो कुछ रेजिस्टेंस मिलने से करेक्शन सेल आता है, स्टॉप एंड यूज टू सेल होने से करेक्शन सेल है, फ्रेश रेजिस्टेंस इन एफसी यस सर। मिलके करेक्शन सेल है। उसको वापस किस तरह से वापस ट्रैक में लाना और किस तरह से उसमें ट्रेड री इनिशिएट करना, एंड री इनिशिएशन में ही हमारी शिक्षा सिस्टम में, मैं नहीं कहता हूँ, जितने सीनियर्स है वो कहते हैं और वो अच्छे से समझते हैं कि इन शिक्षा व्हाट मैटर्स इज नॉट एंट्री एंड एग्जिट, व्हाट मैटर्स इज री इनिशिएशन। यस सर। एक और लास्ट टिप हाँ लेते सर। हैं, और आरईसी। लास्ट टाइम सर अगले वीक में एसबीआई और महिंद्रा महिंद्रा दोनों में यही हुआ था ना सर। वेरी गुड, आई अप्रिशिएट। महिंद्रा एंड महिंद्रा में स्टॉक एंड सेल होके तो बढ़ा, एसबीआई भी हाँ वैसे ही सर। बढ़ा, क्योंकि बैंक के जजमेंट में रेजिस्टेंस देने के बाद में जो बढ़ता है ना, वही तो करेक्शन सेल कंप्लीटेड एंड ओरिजिनल अपडेट बिगिंस कहलाता है। बैंक के जजमेंट यस में सर। एनी रिट्रेसमेंट और एनी करेक्शन सेल इज नथिंग बट अक्यूमुलेशन। बैंक के जजमेंट में स्टॉप एंड यूज टू सेल या फ्रेश रेजिस्टेंस इन एफसी जो है, अच्छे अच्छे मार्केट लिटरेट की जो बाकी सिस्टम्स जो है, जो मैं कभी कभार देखता हूँ, उसमें वहां पे सेलिंग आ जाती है और हम उसको बोलते हैं कि करेक्शन सेल है, हम उसको बोलते हैं रिट्रेसमेंट है। जब तक बैंक का जजमेंट इंटैक्ट है तब तक वो करेक्शन सेल है, रिट्रेसमेंट है, वहां पे खूब बाइंग की पोजीशन फोल्ड होती है, वहां पे काफी लोग शॉर्ट सेलिंग करते हैं, वहीं पे बैड न्यूज आता है और वहीं से वो फिर बढ़ जाता है। और वो यस कैसे सर। बढ़ जाता है,
बस वही नीचे का छोर जो है और ऊपर का छोर है वो पकड़ना है बस, कि कब तक मैं बाइंग का व्यू जो है वो पकड़ के रखूं और कब वापस रीइनिशिएट करूं। दिस इज व्हाट इज नो हाउ, नथिंग एल्स। और सीख जाओगे, और मैं छोड़ूंगा भी नहीं। अभी मैं यस आपकी सर। बात मान रहा हूँ कि सर फ्री फ्रॉम नो हाउ, फ्री फ्रॉम नो हाउ, ठीक है, मैंने आपकी बात मान ली, लेकिन आपको भी मेरी बात माननी पड़ेगी और 1-2 महीने में मनवा लूंगा। यस फ्री फ्रॉम नो हाउ से अपने को नो हाउ में आना ही होगा। चाहे हमारी, अगर आपको यस नहीं समझ में आता है ना, तो आप समझ लेना कि हिमांशु सर को सिखाना नहीं आता है, पर आपको तो सीखना ही होगा, आपको तो कोशिश करनी होगी और मुझे भी यस कोशिश सर। करनी है। आरईसी हाँ सर। मल्टीपल लेडर से चल रहा है, यस सर। बोलो रिसेंट हाई। डार्क नेक। हाँ सर 148.40। वेरी गुड। 148.40 कब आया? सर पहले 5 तारीख, उससे पहले 3 तारीख को, सर 4 तारीख को होगा। 3 3 तारीख तारीख को को आया तो लेकिन। हाँ सर पहले 3 तारीख में देखिए सर। 148.40 और उसका नेक्स्ट लेवल क्या है? हाँ सर 149.65। अच्छा, तो नहीं हुआ ट्रेड सर। किया? नहीं हुआ। नहीं किया सर। कब फॉल लूं मैं? अभी सर 149.65 का नेक्स्ट लेवल हमें देखना है। वेरी गुड। वो कब 4 तारीख में जाके देखूं? हाँ सर। ट्रेड कर लिया? 151.90। यस सर। तो यहाँ पे हमने क्या किया होगा? ट्रेड अकर हुआ, राइट? हाँ सर यहाँ पे ट्रेड अकर हुआ 10:30 बजे। बाइंग बाइंग की पोजीशन हमने बनाई होगी, राइट? यस सर। फिर एज पर द नोट्स बाइंग की पोजीशन जिस दिन ट्रेड अकर हुआ उसी दिन बाइंग की पोजीशन हम क्या करेंगे? शेयर अप करेंगे सर। वेरी गुड। अब क्या करेंगे 4 तारीख के बाद? बाइंग किया 4 तारीख को और स्क्वायर भी कर दिया। अब क्या करें 4 तारीख को? हाँ सर। सर 4 तारीख को कुछ नहीं करना है। 5 तारीख को भी अबाउट ICFC दैट, या RMSL लोअर बाइंग करने के 1519। सर आवाज चली गई। नया नया कब बढ़ेगा? हेलो। 15190 हायर साइड ट्रेड करेगा और अभी इसमें 154 हायर का नेक्स्ट लेवल हायर साइड ट्रेड करेगा सर। हाँ, 154 हायर से ट्रेड करेगा तो नया बढ़ेगा, नहीं तो क्या होगा? 148.60 के पास मिलेगा। हाँ सर। अच्छा, अब मुझे नेक्स्ट डे बाइंग करना है तो कैसे बाइंग करना है बताओ, या तो देख के पढ़ के बताओ। सर हाँ सर नेक्स्ट डे अगर हमें बाइंग करना है तो ICFC या RMSL लोअर ओपन हो तो हम बाइंग कर सकते हैं। वेरी अगर गुड, ICFC में लोअर बैंड का हो सकेंगे और RMSL लोअर में FC 100 का ऐसे करेंगे। वेरी गुड, वेरी गुड। अभी यहाँ पे आरईसी में कैसे बाइंग करते हैं हम? करते कैसे खुला? सर ये RMSL हायर ओपन हुआ है सर। नहीं सर सॉरी सर अरे, ICRC ओपन हुआ है। तो बाइंग का बात ही नहीं निकला। नो हाँ बाइंग बाइंग, का नो बात ही नहीं सर। आरईसी लोअर। हाँ सर। आईसीआरसी में करना रहता तो रीबिगिन टू बाय होता तो हम कर सकते थे। जो लास्ट ऑप्शन हाँ है, सर। आईसीएफसी एंड आरएमएसएल लोअर बेस्ट ऑप्शन है, यस सर। बराबर? तो यहाँ पे हम बाइंग यस नहीं सर करते। मतलब सर अच्छा सर। हाँ सर अच्छा सर एक बात मुझे पता नहीं थी। अगर ICRC ओपन होता है और रीबिगिन टू बाय होता है तो हम वो बाइंग कर सकते हैं। ओके 5% के बराबर, लिए। बराबर। ओके ओके सर। बट वो लास्ट ऑप्शन है। ओके। फर्स्ट बेस्ट ऑप्शन है आईसीएफसी और आरएमएसएल लोअर, जो आपने कहा, जो लिख के दिया यस। है। हाँ सर। तो अच्छा, अभी आरईसी में 5 तारीख को हम बाइंग नहीं करते, राइट? क्योंकि आईसीआरसी यस ओपन सर। हुआ था। अच्छा, अभी 5 तारीख का प्लान में बंद कर दूं? हाँ सर। अब 5 तारीख को शाम को मैं हूँ बाजार में, क्या आरईसी को ट्रैक पे रखूं या नहीं रखूं? नहीं सर क्यों? रेजिस्टेंस मिला ना सर इसलिए। वेरी गुड, फ्रेश रेजिस्टेंस मिला, लोअर बैंड ट्रेड कर लिया, फ्रेश रेजिस्टेंस मिला, तो ये भी आउट ऑफ ट्रैक हो गया। यस सर। ठीक है ना?
ऐसे बहुत Yes, सारे sir. केस स्टडी अभी अभी जो हुए हैं, तो मुझे ये बात हाईलाइट करनी थी, ये समझानी थी। 2 बात ये हाईलाइट करनी थी, 3 बात हाईलाइट करनी थी। एक तो ड्यूरिंग द स्नेक जो हाईएस्ट हाई है वो लेना है। दूसरी बात, हाई तक आया हो बट हाई ट्रेड नहीं किया हो, तो उस पीरियड का जो पीसीसीबी है वो हायर से ट्रेड करे। उसको भले ही हम एक्सटेंडेड हाई कह दे या एक्सटेंडेड पीसीसीबी कह दे या एक्सटेंडेड इनिशिएशन प्राइस कह दे। ये 2 बात मुझे समझानी थी। और तीसरी बात ये करनी थी कि अगर एक बार स्टॉप एंड यूज टू सेल हो गया हो या फ्रेश रेजिस्टेंस मिल गया हो, तो हमको पोजीशन स्क्वायर ऑफ करनी है, Sure. बराबर है। और उसको ट्रैक भी नहीं करना है बात बराबर. फॉर सम टाइम। Yes, sir. कि नो हाउ में आएंगे तो उसको भी हम ट्रैक फिर से करेंगे, क्योंकि जो स्टॉप एंड यूज टू सेल होता है या फ्रेश रेजिस्टेंस देता है, वही आगे जाके है ना बेस्ट बाय बनता है। वो नेक्स्ट लेवल पे हम ले जाएंगे, Yes. बाद में ले जाएंगे। जिनको जाना है उस लेवल पे हम वहां पे जाएंगे, बट ये फर्स्ट लेवल जो है इसको हम क्लियर करें, क्रॉस करें, इसमें 25 30 40 अच्छा ट्रेड कर ले। और फिर ये भी ट्रेड ही है। ट्रेड करना मतलब ट्रेड इनिशिएट करना नहीं। जो ट्रेड छोड़ा हमने, या आरईसी छोड़ा, टाटा स्टील छोड़ा, जिंदाल स्टील छोड़ा, या कोई कुछ और छोड़ा, तो वो भी ट्रेड ही है ना। ट्रेड को छोड़ना वो भी ट्रेड ही है, हाँ, sir. समझ गया ना। इनफैक्ट कौन सा हाँ, ट्रेड sir, करना समझ. है, इससे ज्यादा जरूरी ये है सीखना कि कौन सा ट्रेड छोड़ना है। लर्न टू रिजेक्ट, देन यू विल बी लर्निंग टू सिलेक्ट द बेस्ट आउट ऑफ बेस्ट, राइट। Yes, sir. मैं इस वेबिनार को यहीं पे कंप्लीट करना चाहूँगा। वैसे भी कुछ क्वेरी नहीं है। एंड कल हमारा वेबिनार नहीं है। मैंने मंडे को जब ऑर्गेनाइज किया था तभी बता दिया था। कल हम नहीं मिलेंगे और थर्सडे को मिलेंगे। लव यू ऑल, रिस्पेक्ट यू ऑल, ट्रस्ट Thank you, यू sir. ऑल, ठीक है।